तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक में हम लोग जो जानेंगे, let us consider you have a point charge plus q at point O in the space or air. So you have a point charge plus q at any point in the air or vacuum. Okay, you have to find that if a point charge q plays here, then you know that around it an electric field created, and if due to this point charge electric field created around this, then you have to find that from a distance small r, from point charge at point P, you have to find the electric potential. Okay, again listen my voice. You have to find the electric potential at point P due to a point charge Q at a distance small r. This is your aim. If you have a copy and pen, then please note here your aim. Note here your aim. Okay. In this aim, you may be write here that we have noted. Please note this aim. We have to find an electric potential at point P due to a point charge Q at a distance small r. This is your aim. Okay, but for acquiring this aim, let us consider a point infinity. Let us consider a point infinity, a positive testing charge plus q naught. At the point infinity, a positive testing charge q naught. Okay, but you know that in the earlier topic, electric potential denoted by V and given by the formula V is equal to W by Q naught. Okay, this formula you have already taught by me. V is equal to W by Q naught. In this topic, if we find the work done,
bringing the testing charge q naught from infinity at point P, then we have electric potential at this point P. This is my aim. Okay. For this section, let us consider this testing charge. Listen carefully. If this testing charge placed at point A at a distance x from O, this point charge placed here at a distance x at point A, then you know that if a point charge here and a positive testing charge also here, then you know that both are like charges. Both are like charges. And if both are like charges, then these two are repelled to each other. Okay? Then due to the repulsion by plus q, this testing charge move in this side by the force F. But we know that if two charges q and q naught placed at a distance x to each other, then they repel to each other by a force F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon x square due to Coulomb's law. Newton. This is the first equation. Listen again carefully. You know that if this testing charge placed at point A at a distance x from plus q naught, plus q charge, then these two charges repel to each other by a force F is equal to 1 upon 4 pi epsilon q naught upon x square. Okay. For air or vacuum, if this system placed in any medium, then you may take here also dielectric constant K. This is equation 1, and this equation give us the force in between these two charges. Okay. Now again, if we displaced this charge from A to B, at a distance dx, a small displacement dx from A to B, A से B तक आप डिस्प्लेस करोगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट करना होगा. So in the action of displacement from A to B, a point testing charge q naught from A to B, then you have done work in this action. dW, suppose that dW work is equal to force into displacement. If you have any doubt, please ask me any question. If you have any doubt, please unmute your button and ask me any question. Now, again listen. You know already in class 11, 10th, 9th that work done is equal to force into displacement. Work done is equal to force into displacement. But we have here take some special notation, dW, dx. It means these factors like differentiation factor है ये. Differentiation factor है. इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स अभी मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड, थोड़े समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसको अभी आपको समझाएंगे क्या करना है. जब मैथ में आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, सॉरी इंटीग्रेशन, मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब ये टॉपिक और क्लियर होगा, क्योंकि प्रूविंग टॉपिक है. नाउ
You have already f is equal to this from this equation 1 upon 4 pi epsilon naught k into q naught upon x square into minus displacement dx. Only the value of f replace here. Okay, इंट्रोड्यूस कर दिया गया. Okay, this equation gives us work done from bringing a positive testing charge q naught from A to B at a displacement dx. So dw is equal to force into displacement. But here negative sign taken. Why? Here negative sign taken. Why? Because the displacement x, this is displacement also x, but if you take dx, then A to B is decreasing the displacement. It means distance x में decrement हो रहा है. Due to the decrement in displacement, here taken negative sign minus dx. Displacement is in negative sign. Okay. Now, again, you know that in this whole action, all the topics here, it only except x. x को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने टॉपिक इसमें हैं ये सब के सब कांस्टेंट इस समय होंगे. हाँ, x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. ओके, you can only change the value of x here any point. Okay, then x is taken as variable and every other topics are constant. Okay, now dw is equal to, now we have to find, listen carefully here, but we have to find the work done in the action of bringing testing positive charge from infinity to point P, from infinity to point P, then what will be the total work done in this section? इस सेक्शन में टोटल वर्क डन क्या होगा? अभी हमने क्या किया कि केवल एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट A to B, बहुत छोटा स्मॉल टेकन एज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन. But we have to require the total work done in the action from bringing a positive testing charge from infinity to point P, and infinity means this displacement is taken as infinity and this displacement taken as small r. So in the action of bringing positive testing charge from infinity to r, it means here to here. Then what will be the total work done in this section? What will be the total work done in this section? Okay. So here we have we take a symbol total work done W is equal to integration from x is equal to infinity to x is equal to r, and total point q naught by x square into minus dx. And in this section, all the constant term put outside in this integration, just like q naught upon 4 pi epsilon naught k, और ये टोटल साइन माइनस में है, and integration from x is equal to infinity to x is equal to r and 1 upon x square into dx. इतना ठीक है?
हाँ देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, बात पूरी यहाँ समझ में आएगी, लेकिन इसके बाद ये जो सेक्शन है इंटीग्रेशन का है, अभी आप पढ़े नहीं हैं, अभी आप इंटीग्रेशन पढ़े नहीं हैं, इसलिए ये सेक्शन जो चल रहा है अभी आपको याद करना होगा। जब इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे तब ये क्लियर होगा, अभी आपको फिलहाल याद करना होगा। याद भी करने के लिए डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ में डिफ्रेंशिएशन है, आप पढ़ चुके हो कैसे होता है। आप अच्छा ये बताओ कि 1/x² ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है? इधर साइड में देखो, 1/x का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना होता है? -1/x² होता है ना डिफ्रेंशिएशन। तो आप जान लो कि 1/x² का इंटीग्रेशन जो होगा वो -1/x आ जाएगा, बस ये जान लो। अगर ये इंटीग्रेशन, अगर 1/x का डिफ्रेंशिएशन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन साइन, अब इसको मैं थोड़ा इस साइड में ले रहा हूँ, जगह इधर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिख रहा है ये इधर, ये दिख तो रहा है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? ये मेरा उंगली यहाँ दिख रहा है यार, तो मेरी स्क्रीन पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अरे यहाँ मेरी स्क्रीन पे पूरा अच्छे से दिख रहा है। मरवा तो घुमा ही है। चलो अच्छा, यहाँ तक इसको नोट करोगे, अभी मिटाएं? हाँ, स्क्रीनशॉट करके आप खाली करो इसको। कोई डाउट है इसमें, जरा पूछ लो किसी को, कोई पॉइंट कहीं डाउट है पूछ लो। थोड़ा बुक आप साइड में रखोगे तो हेल्प मिलेगा, वो भी साइड बुक। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि साइड बुक आप साथ में लेके बैठिए पास में, उससे टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। अब जरा फिर से मेरी बात सुन लो, आप लोग बहुत सारे लोग लेट इसमें ज्वाइन कर रहे हो, बीच में लेफ्ट भी कर रहे हो, बात समझ में हमको आ नहीं रही है, कर क्या रहे हो तुम लोग। जिनको पढ़ना है, जुड़ना है, मन से रेगुलर जुड़ो, वरना मत जुड़ो, बेटर है। इसमें फिर से मेरी बात सुनो, बड़ा सिंपली अभी क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। देखो, आपका एम क्या है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा r डिस्टेंस पे, ये हमको फाइंड आउट करना है। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में अगर पढ़े हैं फिजिक्स में, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकलवाया गया होगा। और आज मैं उसी टॉपिक को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, निकालने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि यहाँ से r डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब निकलेगा जब वर्क डन निकलेगा, और वर्क डन के लिए अगर ये टेस्टिंग चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कितना वर्क डन करना होगा। तो इसके लिए पहले हमेशा एक काम किया जाता है कि पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा। तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया गया है ए बी, और जिसको dx हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे लिखा गया वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इन दोनों के बीच कितना लगेगा आपको पता है, बाय द कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ Q नॉट अपन x स्क्वायर, क्योंकि x डिस्टेंस आपने लिया हुआ है, इतने न्यूटन का ये फोर्स अप्लाई होगा। अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, इतना मिल गया। तो इसका मतलब हम जब A से B छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वर्क डन टोटल इतना हो रहा है। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन इन द एक्शन bringing a positive testing charge from infinity to P। तो इन्फिनिटी टू P लाओगे तो पहले डिस्प्लेसमेंट ये x है, सॉरी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी है, बाद में डिस्प्लेसमेंट ये r हो चुका है, यहाँ तक लाना है। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ओके, you may take a integration from x is equal to infinity to x is equal to r. Here x is taken as variable, x is a variable, but other quantity is constant, so put here rest of means q नॉट 4πε0 के टोटल, आप इसको बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन, अब इसका यहाँ पे फार्मूला बस याद रखना कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका टोटल इंटीग्रेशन जो आएगा
वो -1/x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा। यही सेक्शन है जो यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। ये इतना सेक्शन जो आप देख रहे हो इसको आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। अभी फिलहाल याद रखिए, मैथ में जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तभी ये क्लियर होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। नाउ द टोटल वर्क डन इस लाइन से माइनस Q0/4πε0 ओके। और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1/x, और यहाँ लिमिट x =∞ टू x R लेना पड़ता है, और ये -Q0/4πε0 और यहाँ पे जो माइनस, ध्यान रखिएगा इस माइनस के इस लिमिट का रूल ये है कि x के जगह पहले ही इसको बोला जाता है अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट को यानी कि x को रिप्लेस कर दो r से, और फिर माइनस करके x को रिप्लेस कर दो इन्फिनिटी से। देखो कैसे, अगर ये माइनस है तो यहाँ उल्टा होता है, तो माइनस का मतलब पहले इन्फिनिटी और बाद में r, प्लस रहता तो पहले r बाद में इन्फिनिटी। तो यहाँ लिखोगे 1/∞, सॉरी यहाँ माइनस है ना, (1/∞) माइनस और माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा 1/r। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, फिर से ध्यान दीजिए, पहले अपर लिमिट भरा जाता है बाद में लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव साइन है इसलिए पहले लोअर लिमिट बाद में अपर लिमिट करोगे, वो भी माइनस माइनस से प्लस कर देगा इसको, ठीक है। और अब जो वैल्यू आएगी, लेकिन तो ये मैं उल्टा कर चुका हूँ ना, तो ये माइनस ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि मैं उलट चुका, माइनस के कारण मैं ले चुका हूँ इसको, नीचे वाला पहले लिया ऊपर वाला बाद में लिया है, तो ऐसे रहेगा। और अब ये 1/∞ 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल जो बचा हुआ सेक्शन है Q0/4πε0 into 1/r, ओके। तो ये सेक्शन जो आपको मिला है ये वर्क डन 1/4πε0 और ये Q0/r। इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इसका यूज होगा कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। तो 1/4πε0 Q0/r है, अगर ये दोनों Q0 है तब भी r, अगर ये Q1 Q2 होता तो आप Q1 Q2 लिखोगे, Q1 Q2/r, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसी से मतलब है। हमको बस इसके बीच का हमको चाहिए था पोटेंशियल कितना है, वही मैं निकाल रहा हूँ। तो W निकल गया, वर्क डन टोटल निकल गया ना, और अगर जैसे ही टोटल वर्क डन निकला, अब हमारा एम क्या था, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए था। नाउ तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जैसे ही जाओगे तो क्या होगा, V = W/Q0 ना, ये ओरिजिनल फार्मूला है, इसके अर्लियर टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो V = W/Q0, और W आपके पास ऑलरेडी इतना दिख रहा है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पूरी वैल्यू अगर 1/4πε0 के इंटू Q0/r एंड हियर आल्सो Q0 कैंसिल Q0, देन V = 1/4πε0 के एंड Q/r, okay, but for AR by Q, for AR by Q, K = 1, K = 1 होता है, and then the final answer V = 1/4πε0 Q/r, this is your final result। ये टोटल दिख रहा है सबको यहाँ पे, 1/4πε0 Q/r, ये दिख रहा है सबको।
तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो यहाँ से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये फार्मूला आपको बताएगा। ये फिर से आप स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा इसका। हो गया? एनी डाउट? किसी को फिर से कहीं पूछना, जल्दी बोलो। बस इस सेक्शन को अभी आप याद रखना है। फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। एक इनिशियल फार्मूला बड़ा है इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसके पहले फार्मूला आपको बताया गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो चीजें ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार आपको मिलेगा। और ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ये हो गया ना स्क्रीनशॉट? भैया थोड़ा बोलते रहो। ये फार्मूला भी आप इसको सेक्शन करके रखेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी आगे हमको, तो वर्क डन कैसे निकलता है और ये पोटेंशियल का है। और अब जो आपको बताने जा रहे हैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन जरा सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, कुछ एक्सप्लेनेशन है इसका। एक्सप्लेनेशन जब जरा सुनिएगा ध्यान से। You know already that if you have a positive point charge Q and at a distance small r you have a point P, then you have already electric potential E at P is given by 1/4 pi epsilon naught Q by r square। ये समझ में आ रहा है? पहले आपको प्रूफ कराया गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो टॉपिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ठीक है? और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा तो ये इसका डायरेक्शन जो होगा P से A की ओर होगा, OA डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन O से A डायरेक्शन में होगा, O से A की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर P पर हमको निकालना हो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी, so here is not requirement of direction. This is the second equation, E and V. Okay, now in the section E and V you have already clear that the difference is given only this section R. Here is R square and here is only R square and R। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है E और V में। आपको अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इस फार्मूले का जिक्र करोगे। इफ यू हैव आस्क्ड एनी क्वेश्चन electric potential at P due to a point charge, then V is equal to this formula. Okay, but in these two formula, if you differentiate to each other, then E is directly proportional to the square of displacement, then distance, and V is directly proportional, inversely proportional to the only distance। E जो है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि V केवल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों का ग्राफ अगर आप देखोगे, अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस x एक्सिस पे R ले लेते हैं, y एक्सिस पे E और V, ये अगर दोनों ले लिया जाए तो इसका ध्यान दीजिए। पहले एक ग्राफ में खींच रहा हूं, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इधर वाला पहला, ये V का होगा, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और ये जो है E का होगा, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है।
इस ग्राफ को आप खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये सब कॉम्पिटेटिव चीज है और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ई और भी का आर के साथ क्या रिलेशन है। हो गया? चलो, ये ई और भी में हमने आपको कंपैरिजन समझाया कि ई और भी में क्या डिफरेंस है। और ई और भी में अब रिलेशन देख लेते हैं एक यहां से, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी। रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, आप ई और भी में रिलेशन बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर इसमें केवल आर, अगर यहाँ एक और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/r का, तो दोनों साइड में 1/r का मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। जैसे अगर यहाँ भी मैं आर का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ एक आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो पूरा ई बन गया ना। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी ई इज इक्वल टू वी बाई आर, या हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू ई आर। ये ई और भी में रिलेशन है। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक आर जैसे ही इसमें इधर दोनों पक्षों में अगर आर का आप डिवाइड करोगे तो ये टोटल सेक्शन ई बन जाएगा। तो ई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखा जा सकता है, ई इज इक्वल टू वी बाई आर, सो v इज इक्वल टू ई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड v। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए आपने फार्मूला देखा है। और इसी में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज अगर पूछ दिया जाए तब क्या करोगे। नेक्स्ट हेडिंग में छोटा सा डाल लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा हेडिंग डालो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज मीन्स, जैसे सपोज करो कि यहाँ प्लस Q1 है, यहाँ प्लस Q2 है, यहाँ माइनस Q3 है और यहाँ माइनस Q4 है, और इस पॉइंट पर चाहिए। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लो R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसका डिस्टेंस R3 है और इसका डिस्टेंस R4 है। तो P पर टोटल अगर पोटेंशियल चाहिए P पर, तो कैसे निकालोगे। तो पहले इसके कारण निकालोगे, इसके कारण ड्यू टू Q1, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। क्यों? ठीक है ना। इसके बाद ड्यू टू Q2 निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। इसके बाद लेकिन Q3 के द्वारा निकालोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा आपको, Q के जगह अब निगेटिव आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3, और ये भी नेगेटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 बाई R4। ओके, तो सब में से ये कॉमन लेकर के एक लाइन आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब एक के अलावा ढेर सारे चार्ज मिल करके अगर फील्ड क्रिएट किए हो, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तब कैसे निकालेंगे आप। और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो ये सारा बस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आपको करने हैं। ठीक है, तो ये ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज है। तो फिजिक्स का क्लास में आज के लिए इतना ही है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स वगैरह जैसे भी आप कंप्लीट करोगे, और तुरंत फिर से इसी लिंक पर मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट होगा। इसी लिंक पर आप ऑनलाइन रहेंगे। ठीक है, आप लोग अभी बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे।